Hello everyone, welcome back to the channel. So this time we'll be discussing the chapter the hydrosphere. It's a simple chapter. It has hydrological cycles, tide, distribution of water, ocean currents and waves. Chapter is very simple. So let's move on. So firstly, what is hydrological cycle? So before that, we need to understand that what is exactly this cycle consisting. So in simple words, you know that water, जो पानी है, it circulates around the different realms of the earth. जैसे हम लोग पानी की बात करते हैं, तो पानी कहाँ कहाँ पे दिखता है हमको? हमको पानी दिखता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसियस. ओके. अब what happens due to the heat of the suns, the glacier and the snow melt into liquid water. Obviously टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आइस है ग्लेशियर से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, एंड वो कहाँ जाता है? द वाटर फिट्स टू द ओशन, लेक्स एंड स्ट्रीम्स. ओके. Again, we will try to understand three concepts. So first, we should go step by step. Now first is the sun's heat cause the water to evaporate from ocean and lakes and streams. So what is evaporation? It is a process. Evaporation is a process by which liquid water on Earth's surface turns into water vapor and gets mixed into the atmosphere. Again, water from the plants and trees, it also enters to the atmosphere, and ये process को बोला जाता है transpiration. So what is transpiration? What is transpiration? So the water from the plants and the trees, it enters into the atmosphere. It is known as transpiration. Again, what happens after evaporation? So जो water, warm water, it rises up into the atmosphere of the earth. जैसा जैसा ऊपर जाता है, the cool air of the atmosphere causes the vapor to turn into liquid water. तो जो इवापोरेशन से वाटर इवापोरेट हुआ है, वो वेपर्स बन के ऊपर स्काई में जाएगा और धीरे धीरे बिकॉज ऑफ कूल टेम्परेचर धीरे धीरे वो टर्न होगा लिक्विड वाटर में, एंड इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द क्लाउड्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. अब जब ये क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, जब वो क्लाउड्स पूरा पानी से फिल होगा, तो वो नीचे आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन, एंड दिस इज नोन एज योर प्रेसिपिटेशन. सो व्हेन a cloud becomes fully filled of water, fall back on the earth's surface, and this is known as precipitation. Okay. So I hope this is clear to you. So what we saw, that the water in the earth is present in three different forms: liquid, solid and gaseous. Okay. Now what is the important role over here? It is the role of the heat of the sun. So what will happen, क्या होगा कि ग्लेशियर्स और स्नो से वाटर मेल्ट होगा लिक्विड फॉर्म में और वो जाएगा ओशन, सीज और लेक्स में. So what is evaporation then? It is a process by which liquid water on the earth's surface turns into water vapor. Okay. Second concept है, when the water vapor rises up to the atmosphere of our earth, at the higher places the cool air of the atmosphere causes the water to turn back into liquid. तो यही जो ऊपर इवापोरेटेड वेपर्स गए हैं, वही बाद में वहां पे ऊपर जाके कूल हो जाएगी और एक लिक्विड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड स्लोली स्लोली इट विल फॉर्म क्लाउड्स, एंड दिस प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन. एंड जब फाइनली ये क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर व्हेन इट कम्स डाउन इन द अर्थ, इट इज नोन एज रेन. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है इस चैप्टर के. तो हमने अभी देखा इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट. अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का अदर नेम है वाटर साइकिल. सो द प्रोसेस ऑफ ये इवापोरेशन, condensation and precipitation through which the water constantly circulates on the earth, it is known as hydrological cycle. Exam point of view से very simple definition है, it can be asked for 2 marks. So the process of evaporation, condensation and precipitation through which the water constantly circulates on the earth, it is called as the hydrological cycle. Next is a distribution of water. So distribution of water जो है, it is very simple. So water अराउंड अस. अब कैसा याद रखना वाटर? तो वी हैव डिफरेंट. तो हमारे आसपास जो वाटर है वो है LORSG and UG. सॉरी फॉर द राइटिंग. सो हाउ टू रिमेम्बर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर? सो हमारे आसपास वाटर किस किस फॉर्म में है? तो हमारे पास है लेक्स, ओशन, रिवर, सीज, ग्लेशियर एंड अंडरग्राउंड वाटर. ये हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है. ठीक है. LORSG UG. अब इस वाटर को कैसा स्प्रेड हुआ है ये अक्रॉस हमारे? सो सबसे पहले वन सेकेंड. ओके. नाउ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, ये सोर्सेज ऑफ वाटर है. ओके. अब ये सोर्सेज हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? सो जो वाटर में सबसे लेस डिजोल्व सॉल्ट है उसको हम रेफर करते हैं फ्रेश वाटर. सो वाटर दैट कंटेन्स वेरी लिटिल डिजोल्व सॉल्ट
is known as fresh water. Okay, so what are the sources? LORSG, lakes, ocean, sorry, sources of fresh water. So rivers, lakes, snow, glaciers, underground water. Now this distribution of water changes from place to place. Okay, if the rate of evaporation is high, precipitation is less, there is scarcity of water. Say for example, you talk about desert region, तो desert region में evaporation high होगा लेकिन precipitation होती ही नहीं, तो obviously वहाँ पे scarcity रहेगी. Now what is saline water then? So saline water means when the water contains a large amount of dissolved salts such as sodium, magnesium and potassium. So how to remember? So sod, mag, pota. Okay. So sod, mag, pota. Remember that way कि ये जब तीन का amount of dissolved salt sodium, magnesium and potassium का extreme होगा तो वो water हो जाएगा saline water. Okay. Now the total concentration of this dissolved water in universe is known as salinity. Salinity मतलब खारटपना, खारापन. So what you call saline water or the water which contains dissolved salt of sodium, magnesium, potassium, it is known as saline water. Okay. Now how it is expressed? It is expressed in PPT, that is parts per thousand. Okay, a parts per thousand एक उसका unit है. So if the weight of, it is an example, if the weight of the dissolved salt is 1000 gram, अगर 1 kg of sea water में 1000 ग्राम, अगर एक 1000 ग्राम या 1 kg of sea water है उसमें 30 ग्राम अगर dissolved salt है तो उसका salinity हम बोलेंगे 30 parts per minute. And what is the normal average sea water salinity? So normal average sea salinity is 35%. Remember this can be asked. So normal salinity of the sea water is 35 ppt. ppt means parts per thousand. तो क्या है parts per thousand? तो ये unit है किसका? salinity. So what is salinity? So salinity is the amount of dissolved salt such as sodium, magnesium, potassium present in the water. So it is known as saline water. और उसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग salinity. And what are the sources of fresh water? तो fresh water कहाँ से मिलेगा? Rivers, lakes, snow, glaciers, underground water. I hope this is clear to you. Next is salinity, how it is influenced. So क्या factors हैं? So basically your rainfall, evaporation, river runoff or ice formation. Okay, और ये salinity it will change from place to place. Like equator और sorry polar regions में salinity low रहेगी. क्यों? क्योंकि polar region में रेनफॉल कम होगा तो ऑब्वियसली वाटर इंटैक्ट ही रहेगा. लेकिन हाई कहाँ पे होगी? जहाँ पे हैवी रेनफॉल है, लाइक इक्वेटोरियल रीजन. ओके, आई होप दिस कंसर्न दिस टॉपिक इज क्लियर. Now next is distribution of water on the earth. Now you need to understand few terminologies. तो water का percentage कैसा? So 97 of the earth water is which water? It is ocean water और ये saline है. So ये drinkable नहीं है. अब हमारे पास 3% of fresh water है. ओके, अब ये 3% में से भी 2/3% जो वाटर है इट इज इन आइस शीट्स एंड ग्लेशियर. अब ये वाटर हमारे यूजेबल नहीं है क्योंकि ये ग्लेशियर्स में है, बर्फ के बीच में है. अब इट मीन्स व्हाट? लेस देन 1% ऑफ द अर्थ वाटर इज द फ्रेश वाटर विच इज अवेलेबल इन द ग्राउंड वाटर. सो जो जमीन में से जो पानी निकलता है जिसके थ्रू हम लोग बोरिंग से पानी पीते हैं या फिर डेडिकेटेड रिवर्स, लेक्स जो फ्रेश वाटर की सोर्स है वहीं से हमको पानी मिलता है. So technically we only have on earth 0.01% of drinkable water. Rest 97% of जो water है वो saline है. 3% of fresh water जो बचा है उसमें से 2/3 water जो है frozen और ice sheets में है. And less than 1% of the earth water is in underground water. I hope this distribution of water is clear. चलो moving on next. तो ये एक डायग्राम है जो वर्ल्ड की मेजर रिवर, लेक्स एंड रिवर्स, ओशंस को दिखा रहा है. आई होप दैट इज क्लियर. दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर. अब हम डायरेक्टली ओशन में आते हैं. तो ओशन में हम लोग अलग अलग मूवमेंट्स देखते हैं. ओके, लाइक हम ओशन को कभी रिवर की तरह स्टिल नहीं देखते, लेकिन हमको ओशन में क्या दिखता है कि ओशन में एक लहर, ये जिसको हम वेव्स बोलते हैं. तो व्हाट इज दिस वेव? सो द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर ड्यू टू द फोर्स ऑफ विंड. ओके, तो ये जो मूवमेंट दिख रहा है ओशन का या सी का, तो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड, इट इज आल्सो नोन एज वेव्स. इसको ही बोलते हैं वेव्स. ओके, अब ये जो वेव्स की जो अप एंड डाउन मूवमेंट है ये डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ द विंड. अगर विंड ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा वेव्स अप एंड डाउन होंगे. ओके, अब जैसे जैसा पानी ऊपर और नीचे जाता है तो एक टर्मिनोलॉजी डेवलप होती है उससे. सो जब वेव एक हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज क्रेस्ट and the lowest point of that wave is known as trough. Okay, now jab the vertical distance between the two wave, it is known as wavelength,
and the horizontal distance between the crest and the trough is known as wave height. तो wave height कैसे पता चलेगी? तो जो highest point पे wave गई है वो होगा wave, और जो lowest point wave आई है उसको बोलते हैं trough. तो उसका जो vertical distance है उसको हम बोलेंगे wavelength, और जो दो हाइट्स पे वेव्स गई है जिसको हम क्रेस्ट बोलेंगे उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम उसको क्या बोलेंगे? वेव लेंथ. सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज वेव. अब वेव्स के बाद एक दूसरी चीज जो दिखती है ओशन में जनरली उसको हम बोलते हैं टाइड्स. So what is tides? So it is the periodic rise. It is important. It is the periodic rise and fall of ocean water due to gravitational force. अभी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आता है? ड्यू टू द एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द रोटेटिंग अर्थ. अब सन एंड मून तो अर्थ से दूर है, तो जब भी अपने ग्रेविटी से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ओशन में सीज में टाइड्स आती है. नाउ द मून एक्सर्ट्स अ लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज इट इज वेरी क्लोजर टू द अर्थ. तो मून जो है वो अर्थ के बहुत करीब है. ओके, सो व्हेन द water which has risen to its highest level, so it is known as high tide. जब water एकदम हाई ग्रेविटी के जैसे एकदम हाई मोशन पे जाता है, हाइट पे जाता है, उसको हम बोलेंगे हाई टाइड्स. और जब जब पुल एकदम कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लो टाइड्स. ओके, so what is tide? So tide is the periodic rise and fall of ocean water due to the gravitational force. किसका gravitational force? sun and the moon. कहाँ पे? on the rotating earth. okay, अब ये जो alternate rise and fall है, it happens twice in a day. तो दो बार होता है. So difference between the high tide and the low tide is known as tidal range. This can be so what is tidal range? So it is the difference between high tide and low tide, and it is called what? It is called the tidal range. Okay, तो ये जनरली होता है, ये मोस्टली ज्यादा कब होता है? ऑन न्यू मून डे or on full moon days when the sun, moon and earth are positioned in straight line. Okay, तो their combined gravitational pull is exceptionally strong. तो जब सन मून एंड अर्थ एक ही पोजीशन में रहेंगे स्ट्रेट, तो हम उसको बोलेंगे, उसको उसका एक नाम है स्प्रिंग टाइड. सो हाउ टू रिमेंबर स्प्रिंग टाइड? सो रिमेंबर एस फॉर स्प्रिंग, एस फॉर सीधा, सीधा मीन स्ट्रेट. सो व्हेन एसईएम, एसईएम का मतलब सन अर्थ एंड मून जब पोजीशन एक लाइन में होंगे, स्ट्रेट होंगे, तो उस टाइम पे ग्रेविटेशनल पुल एक्सट्रीमली स्ट्रांग होगा, और इसी पुल को हम बोलेंगे स्प्रिंग टाइड. तो दो टाइप के टाइड्स है, स्प्रिंग टाइड और निप टाइड. सो व्हाट इज निप टाइड्स? अब निप का जो लेटर है ना वो एक्चुअली ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो एक एंगल क्रिएट कर रहा है. सो व्हेन sun, earth and moon are positioned at right angles, so it will be called as neap tides. और इसमें sun, earth and moon अब ये एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो इसको हम बोलेंगे स्प्रिंग टाइड्स, और जब ये एंगल्स में होगा तो इसको हम बोलेंगे नीप टाइड्स. आई होप दिस इज क्लियर. द नेक्स्ट, अभी टाइड्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पे एक्सट्रीम अच्छी टाइड दिखती है. सो इन कैनेडा, so in Canada in Bay of Fundy, the highest tide is seen, which is New Brunswick from Nova Scotia. Okay, so इसका जो डिफरेंस है हाई टाइड एंड लो टाइड का वो 16.3 मीटर है, विच इज टॉलर देन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग. अब ये लेवल का टाइड्स ओशन में मिला है. अब सिंपल फीचर्स ऑफ हाई टाइड्स में क्या होता है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हाई टाइड्स के फीचर, सबसे पहले हाई टाइड्स में क्या होता है कि वाटर टूवर्ड्स द सी शोर जाता है. सी शोर का मतलब किनारे पे पानी फेंका जाता है. तो उससे क्या होगा कि ड्यूरिंग द हाई टाइड द डेप्थ ऑफ द वाटर एट द माउथ ऑफ द सम ऑफ द रिवर इंक्रीजेस. नाउ बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स क्या होगा? द शिप्स, इट हेल्प्स द शिप्स टू रीच टू द पोर्ट्स located on this river. Again, high tides में fish comes near the coast and it helps the fisherman to catch the fish. Again ये high tides अगर बहुत extreme होते हैं तो it is useful for generation of electricity. अब उसका एग्जांपल है शिवा लेक टाइडल पावर प्लांट विच इज इन साउथ कोरिया. अगेन हाई टाइड्स में और एक एडवांटेज क्या मिलता है? तो मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प्स इन सस्टेनिंग रिच मरीन लाइफ. अब वो जो वाटर है ओशन का उसको हम लोग एकदम तो क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन ये हाई टाइड्स की वजह से, लो टाइड्स की वजह से क्या होता है कॉम्बिनेशन में जो न्यूट्रिएंट्स है जिससे कि ये ओशन सर्वाइव कर रहा है, जो मरीन लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाते हैं. ओके, अब एक और फीचर ये है कि जब हाई टाइड्स का बहुत सारा पानी ओशन से बाहर निकलता है तो जो लो लाइंग एरियाज है, जो ओशन के आजू बाजू की जगह है, वहाँ पे सैलिन वाटर कलेक्ट होता है और वहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट होता है. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विच कैन बी एज द यूज ऑफ और द फीचर ऑफ हाई टाइड. तो क्या हाई टाइड के फीचर है? सो डेप्थ ऑफ द वाटर इंक्रीज एट सम ऑफ द रिवर, it helps the ships to sail faster
and fishes come near the coast, it benefits the fisherman for catching fishes, useful for generation of electricity. और इसका example है Siva Lake, a tidal power plant in South Korea. It helps in mixing of nutrients in sustaining the rich marine life, and the saline water gets collected in the low-lying areas, okay, which is useful for production of salt. I hope this is clear. Now next is ocean current. अभी ओशन करंट क्या है, तो ये जो करंट हम देखते हैं वो करंट नहीं है. ओशन मीन्स इट इज द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. तो ओवर द ओशन, ओशन के नीचे एक स्टडी एक डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं ओशनिक करंट. ओके, इसके रीजन क्या है कि जो अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंड मासेस में और कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ है. तो बेस्ड ऑन दैट और जो टेम्परेचर उस पानी का रहता है उसके हिसाब से देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ओशन करंट, वार्म एंड कोल्ड. ओके, so what is warm ocean current? So ocean current which flows from equatorial to polar. तो जो इक्वेटोरियल से, इतना याद रखना है बस, इक्वेटोरियल से जो पोलार को जो वाटर फ्लो जा रहा है जिसका हाई सरफेस टेम्परेचर है उसको हम बोलेंगे वार्म ओशन करंट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अगेन आई एम रिपीटिंग, द ओशन वाटर विच फ्लोज फ्रॉम इक्वेटोरियल टुवर्ड्स पोलर, जिसका हाई सरफेस टेम्परेचर उसको बोलेंगे वार्म करंट. और जो ओशन करंट है फ्रॉम पोलर, जो इक्वेटर की तरफ आ रहा है जिसका लो सरफेस टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे कोल्ड करंट. ओके, अब इससे क्या होगा कि ओशन करंट डेवलप होता है वेरियस फैक्टर से, जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी, सैलिनिटी ऑफ वाटर, अर्थ रोटेशन, प्रिवेलिंग विंड्स एंड शेप ऑफ द लैंड मासेस. ओके, नाउ यहाँ पे भी बिकॉज ऑफ कोरिलेसिव इफेक्ट द ओशन करंट्स मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, ये याद रखना, कोई भी एक साइड याद रखो. तो ये क्लॉकवाइज, जो घड़ी हमारी घूमती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. ओके, and what is the speed of this ocean current? Average speed is 3 to 10 km per hour. Okay, so from exam point of view the question comes in option key due to correlative effect, what is the moment of ocean current? So simple, कोई भी एक साइड याद रखो, उसका अपोजिट होगा. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो याद रहा. तो नेक्स्ट जो उसका अपोजिट होगा साउथ सदर्न डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इसका इफेक्ट, अब ओशन करंट का इफेक्ट क्या है? Obviously it plays an important role. So it actually influences the distribution of temperature over the globe. Okay, now what happens because of this? तो जो wind blow होती है over the warm current, they pick the moisture and cause rainfall. तो जो warm ocean current है वो क्या करेगा, air का moisture pick करेगा और उससे rainfall होगा. Okay, अब इसके अलावा what is more important feature कि जब warm and cold current meet होते हैं, जब दो ठंडा टेम्परेचर और गर्म टेम्परेचर एक साथ है, तो क्या होगा, डेंस फॉग्स क्रिएट होता है. ओके, विच इज द कॉज फॉर फेटल एक्सीडेंट्स. ओके, अब इसका एग्जांपल क्या है? सो न्यू फाउंड लैंड वेयर द गल्फ स्ट्रीम एंड द लैब्राडोर करंट मीट, इट इज वन ऑफ द सच एक्सीडेंट प्रोन जोन. अब जहाँ पे कोल्ड करंट होता है, सो एरियाज वेयर कोल्ड करंट एंड वार्म करंट्स कन्वर्ज, सो इट क्रिएट्स एन एक्सीलेंट ग्राउंड फॉर फिशिंग. ओके, तो जहाँ पे ये कन्वर्ज वे में मिलते हैं तो वहाँ पे फिशिंग के लिए एक्सीलेंट ग्राउंड बनता है. एंड इट इज एरिया रिच इन प्लैंक्टन. प्लैंक्टन्स क्या है? ये एक्चुअली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फिशेस खाती है. तो इसी की वजह से नियर जापान के आसपास जो भी वाटर बॉडीज है वहाँ पे फिशिंग के लिए अच्छा सोर्स है. अब थर्ड एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट फैसिलिटेट्स नेविगेशन. फैसिलिटेटेड नेविगेशन मीन्स अगर शिप ओशन करंट के डायरेक्शन में जा रही है तो इट मूव्स फास्टर एंड इट सेव्स टाइम एंड फूल. एंड जो वार्म करंट होता है वो क्या करता है, आइसबर्ग को मेल्ट करता है. तो आई होप दिस इज क्लियर, फीचर ऑफ द ओशन करंट. आई होप द टॉपिक वाज वेरी क्लियर.